Namaste, welcome back to the channel. So, after your undergraduation or post graduation or Doctor of Philosophy or even postdoctoral, so one thing you are looking for is registration. So, registration process is mandatory for the purpose of clinical practice. In this video, we are going to solve all issues in relation to registration. There are various situations like you are studying in one state, going into another state for practice, you are going into another state for the institution as a teacher. Multiple situations are there. And what is this NOC, institution, university, board, everything will be solved in this video. Like all information will be shared. If you have any query regarding registration, you can definitely get it cleared just by watching this complete video. So we have already spoken about this registration process, and I think you might remember certain information regarding central registration. Now, just to recap, registration is a process where one particular board consisting of the designated members will provide a particular registration number by verifying all the graduation or any of the post-graduation related documents, and then give you permission to practice in that particular boundary related to that particular state. Now, there are two kinds of registration, one is state and another one is central. तो हम इसको भी बायलैंग्वेज चलेंगे ताकि सभी लोग समझ सकें. तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के बारे में बाद में बात करेंगे. स्टेट में हर एक स्टेट में एक बोर्ड रखा गया है जो इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देखता है, और हर एक में एक इंचार्ज होगा, उनके अंडर कुछ लोग काम करने वाले होंगे. इतना ज्यादा मतलब भीड़ की जरूरत नहीं है, बहुत कम लोग ये चला सकते रजिस्ट्रेशन ऑफिस बोर्ड्स. तो हम जाएंगे. अभी रजिस्ट्रेशन दो तरह से आपको रजिस्ट्रेशन का एक तरह से कंफर्मेशन मिलता है. वन इज योर डिजिटल वेरिफिकेशन विथ स्मार्ट कार्ड. Certain states have already implemented this. As soon as you go for registration, initially the provisional is already given. Provisional तो पहले मिल जाता है, वो तो कॉलेज में ही पहुंच जाता है, if it is the case of UG. लेकिन जब आप डिग्री सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से आना लेट हो जाता है, उससे पहले ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं. तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ही भी साथ आ जाता है. मतलब इंटर्नशिप के टाइम में ही आपको एक प्रोविजनल डिग्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है. लेकिन जब उसको परमानेंट करना है तो उसका प्रोसेस हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन आपको दो तरह से हो सकता है. एक तो डिजिटल हो गया वेरिफिकेशन, आपके आधार जैसे बायोमेट्रिक्स लेके यू विल बी गिवन अ स्मार्ट कार्ड अलोंग विद द सर्टिफिकेट. स्टेट्स लाइक सदर्न स्टेट्स हैव अडॉप्टेड दिस मॉडल. दूसरा है जो ट्रेडिशनल चल रहा है, कागज के काम, सारे कागज देखेंगे और आपको रजिस्ट्रेशन भी एक कागज ही मिलेगा, तो आपके पास कोई स्मार्ट कार्ड नहीं मिलेगा. तो दो तरह से आज भी रजिस्ट्रेशन इंडिया में प्रचलित है. सो देयर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अक्रॉस इंडिया. इट डिपेंड्स फ्रॉम और वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. इसी के बेसिस पे कभी कभी अमाउंट आल्सो वेरीज. द वन विद डिजिटल वेरिफिकेशन यूजुअली हैव अ हायर चार्ज. यूजुअली इट मे बी ऑपोजिट आल्सो, बट दैट इज वन थिंग यू नीड टू नोट डाउन. So there are various situations under this process of registration. जैसे कि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, your registration is expired or going for the renewal, you want to change your registration to some other state, it may be your own state, you are going to other state. आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी का क्या रोल है इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, एनओसी क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हम अभी कवर करने वाले हैं. सबसे पहले सिचुएशन है you are going for the first time registration, means you are just completing the undergraduation along with internship. So then you will be going into your particular state board. For example, imagine you are studying in Maharashtra, you want to practice in Maharashtra, you have domicile in Maharashtra, your UG college is also in Maharashtra. So you will go to the Maharashtra board for registration, which does the Ayurveda registration. So this is the simplest process. Here on the same day you might be able to get the registration because the university and that board are linked. So there is no verification process between university and registration board. I hope you understood. There are three bodies here. One is your college where you studied, one is university under which your college falls, third is the registration board. Basically the function of the registration board is
आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पता करना है कि आपने सच में वहां पर पढ़ा है या नहीं है, ये फर्जी सर्टिफिकेट है, बस यही ये कंफर्म करते हैं। अगर सेम स्टेट का कॉलेज है, सेम स्टेट का डोमिसाइल है, सेम स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेम स्टेट में ही प्रैक्टिस करना है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सबसे आसान रजिस्ट्रेशन तरीका है और मिनिमम प्राइस में ही हो जाता है। तो फॉर अंडर ग्रेजुएशन across India it varies from 3,000 to 5,000 rupees and usually it is given for 5 years initially, मतलब ये जनरल रूल है। तो ये यूजी, पीजी और पीएचडी के लिए, तीनों के लिए अप्लीकेबल। नाउ कमिंग इनटू द सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है क्योंकि बहुत कॉलेजेस जो है अपने स्टेट में नहीं होते, तो सीट्स भी कम होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में जाके अपना यूजी करके आते हैं। तो तब क्या होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस है। बेसिकली इमेजिन, टेक एन एग्जांपल, वही महाराष्ट्र वाला स्टूडेंट जो है उनको कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज कर्नाटक में मिल गया, तो उनको लग रहा है कि मुझे वहां जाके यूजी करना ठीक रहेगा, या कहीं ना कहीं कॉलेज ही नहीं है, उनको दूसरे स्टेट में जाना पड़ा। तो बेसिकली दे विल गो देयर, दे विल स्टडी देयर 5.5 years। आफ्टर दैट दे विल ट्राई टू कम बैक टू देयर ओन स्टेट। वो तो सिर्फ पढ़ाई के लिए वहां पर गए, वो तो सेटलमेंट के लिए नहीं। अब वो वापस अपना स्टेट में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, महाराष्ट्र में ही वापस आना चाहते हैं, या जो भी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वहां वापस आना चाहते हैं। अब क्या होगा, उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए, रूल के हिसाब से ये महाराष्ट्र में होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर दे आर गोइंग टू प्रैक्टिस। होता क्या है, आपको डायरेक्टली वहां पर बोर्ड जाने से वो मना कर देगा। यू कैन नॉट डायरेक्टली गो इनटू महाराष्ट्र बोर्ड आस्किंग फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपका इंटर्नशिप जो है या पूरा बीएमएस है वो कर्नाटक में हुआ था। तो इंटर्नशिप के टाइम में ऑलरेडी आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट देता है, स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड है, कॉलेज की तरफ से ही मिल जाते हैं, उसके लिए भागने की जरूरत नहीं। तो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोविजनली वो स्टेट में ऑलरेडी हो चुका है कॉलेज की तरफ से, उसको पहले एनओसी लेना पड़ेगा। व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू गो टू कर्नाटका कापू बोर्ड रजिस्ट्रेशन बोर्ड लाइक प्लेस, वहां जाके एनओसी लेना पड़ेगा कि मुझे अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बिकॉज आई बिलोंग टू महाराष्ट्र एंड आई वांट टू प्रैक्टिस देयर, तो मुझे बस एनओसी चाहिए। यू डोंट नीड टू आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन, आस्क फॉर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर अलाउइंग मी टू रजिस्टर इन महाराष्ट्र बोर्ड। तो वो एक तरह से एनओसी दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, सिर्फ एनओसी दिया जाता है। तो वो कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आप उससे पहले डिग्री सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिल चुका हो तो डिग्री सर्टिफिकेट, और सारे जो इस बोर्ड से मिला हुआ डॉक्यूमेंट्स है, एनओसी है, वो सारे लेकर आपको जाना है महाराष्ट्र बोर्ड। अब महाराष्ट्र बोर्ड में जाके आपको बोलना है मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। दे विल आस्क फॉर द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप महाराष्ट्र के, तो आपके महाराष्ट्र का प्रूफ दिखाइए आप कहाँ पर रहते हैं, तो एज पर देयर प्रोटोकॉल उसको वेरीफाई करके फिर वो अप्लाई करने के लिए बोलेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई। बट यहाँ पर एक चेंज क्या है, रजिस्ट्रेशन तुरंत नहीं होता है। वाई? बिकॉज द इंस्टीट्यूट और द यूनिवर्सिटी इज नॉट इन महाराष्ट्र, ये तो दूसरे स्टेट में है। तो यहाँ पर क्या होगा, महाराष्ट्र बोर्ड विल सेंड अ लेटर, एक लेटर भेजा जाएगा, एक यूनिवर्सिटी को जाता है, एक कॉलेज को जाता है, इंस्टीट्यूट जहां पर आपने पढ़ा है, और उससे रिप्लाई मांगेगा कि क्या ये स्टूडेंट सच में आपके अंडर डिग्री लेके आई है। तो बेसिकली दे आर वेरीफाइंग वेदर यू हैव रियली स्टडीड और नॉट अ फेक सर्टिफिकेट। तो जब वहां से रिप्लाई वापस आ जाता है, यूनिवर्सिटी से भी आ सकते हैं, कॉलेज से भी आ सकते हैं, कभी कभी बोर्ड जो है दोनों को मांगता है, कभी कभी किसी एक का भी रिस्पॉन्स से मान लेता है। अगर मान लीजिए कुछ लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी ही भेजते हैं, कॉलेज नहीं भेजते, वो अलग अलग बोर्ड का रूल है। तो जब रिप्लाई आ जाता है, देन यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द बोर्ड कि आपकी वेरिफिकेशन हो चुका है। वेरिफिकेशन स्टेज ही था, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं था, आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन चल रहा था। वेरिफिकेशन हो चुका है, आप आ जाइए और रजिस्ट्रेशन के लिए आप अभी शुरू कर दीजिए प्रोसेस। देन योर रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट एंड यू विल गेट अ रजिस्ट्रेशन नंबर। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन studying in your own state and registering, and studying in another state and registering in your state. So this was in relation to situation number 2. Now situation 3, this is simple renewal process. So after 5 years your registration is expired, you go for renewal. So renewal is a very simple process, it will be just renewed. So certain places there is no additional money for registration, certain times there is a minimum amount and there is no more verification required, whether it is your domicile state or the other state, no more verification required because already it is verified. So this is easy. Renewal process is not difficult, just renewal application has to be given
and it will be done immediately. Now, the difficult part is this transfer of registration, which means you have registered in a particular board. Already you have registered in a particular board. So after registration, now what happens is you may have to move on to other state, maybe for job purpose or anything, and there you want to practice. Like imagine, for example, you are a student from say for example the Gujarat, and you have done the registration there. After 1 year, you got an opportunity to go to Madhya Pradesh. Now Madhya Pradesh board is different and Gujarat board is different. So in Madhya Pradesh you are not allowed to practice, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो गुजरात बोर्ड ने वेरीफाई की, तो मध्य प्रदेश बोर्ड को पता ही नहीं आप कौन है, तो इसलिए आप वहां पर क्लिनिकल प्रैक्टिस प्राइवेटली नहीं कर सकते. तब क्या करना होगा, आपको मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रेशन बोर्ड में जाके आपको रजिस्ट्रेशन नया कराना पड़ेगा. अब इश्यू ये है कि आपके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एक चल रहा है गुजरात में, क्या दूसरा रजिस्ट्रेशन यहाँ कर सकते हैं? नो. द रूल सेज यू कैन रजिस्टर ओनली इन अ पर्टिकुलर इन अ वन स्टेट. At a time, you cannot have registration of 2 states. Not possible. It's a malpractice. तब क्या करना होगा? Initially, you have to go for the cancellation of registration from your previous board. आपको पहले आपका registration जो हुआ था उसको cancel करना पड़ेगा, और जब वो cancel हो जाएगा उसके साथ एक cancellation के बाद एक NOC मिलता है, No Objection Certificate. वो No Objection Certificate एक कॉपी आपको मिलता है, एक कॉपी वो रेस्पेक्टिव बोर्ड को दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो टू गुजरात, अभी इसी एग्जाम्पल में जब वो गुजरात जाएगा बोर्ड पे, तो वो कैंसलेशन एप्लीकेशन भर के जो भी फॉर्मेलिटी से खत्म करके जो फीस है, फीस भी है वहाँ पर कैंसलेशन के लिए भी, सब कुछ फ्री नहीं है इधर, प्लस सबके लिए कुछ ना कुछ पैसे लगता है और भारी की रकम लगता है. तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है बेसिकली. तो कैंसलेशन 1,000-1,500 जैसे मान लीजिए तो लग गया, तो आपके जो पहले वाला डॉक्यूमेंट्स है उसको ले लेंगे, जो भी स्मार्ट कार्ड मिला होगा या रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिला होगा वो रख लेंगे अपने आप. देन दे विल गिव 1 कॉपी ऑफ योर्स टू यू. आपके कॉपी को आपको दिया जाता है, और दूसरा कॉपी जो है जिस स्टेट में आप अभी जाके रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उस स्टेट के लिए वो लिख के देते. मीन्स वो जनरली नहीं देते कि मुझे इनको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत नहीं, ऐसे लिख के नहीं देते. दे विल गिव टू रेस्पेक्टिव बोर्ड, पर्टिकुलर बोर्ड, तो टू द बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश ऐसे लिख के देते. रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश, ये हमारे रजिस्टर्ड डॉक्टर थे और अभी इन्होंने कैंसलेशन लिए तो हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ से बंद हो गया है, तो अभी ये आपके बोर्ड में रजिस्टर होने के लिए हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह के मैटर वहां पर लिखा होगा. सो आफ्टर राइटिंग दिस दे विल सेंड अ लेटर. बेसिकली रूल के हिसाब से उस बोर्ड से डायरेक्टली एमपी बोर्ड को जाना चाहिए. एक कॉपी आपके हाथ में है, एक कॉपी थ्रू पोस्ट जाएगी. कभी कभी विथ गुड फेथ दोनों आपको दिया जाता है, कभी कभी वेरी रेयर टाइम्स. दैट इज गुड ऑप्शन बिकॉज यू डोंट लूज द डॉक्यूमेंट. तो व्हेन यू गो टू मध्य प्रदेश फॉर रजिस्ट्रेशन, वो दोनों कॉपी मांगेगा. जो आपकी कॉपी है वो भी वो लेगा, एंड इफ द अदर कॉपी हैज नॉट कम ही विल वेट. और अगर आपको दोनों दिया हुआ है तो दोनों कॉपी आप मांगेगा, आपके पर्सनल कॉपी और उनके जो 2 लिखा हुआ था दोनों कॉपी वो लेगा. देन द प्रोसेस विल स्टार्ट. उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा. अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे होगा आपको बताया. यू आर नॉट स्टडिंग इन मध्य प्रदेश, द स्टेट इज इन योर यूजी कॉलेज इज इन गुजरात. तो अब क्या होगा, द मध्य प्रदेश बोर्ड विल टेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड देन अमाउंट, एंड नाउ वेरिफिकेशन इज नेसेसरी. अब वेरिफिकेशन के लिए वो अपना रेस्पेक्टिव कॉलेज या यूनिवर्सिटी को भेजेगा जहां पर आपने पढ़ा है, तो वहां भेजेगा. So again, it will take 1 or 2 months time. So this is the process of transfer of registration from one state to another state. Just to simplify, एक NOC कैंसलेशन करना पड़ेगा आपके पहले स्टेट में, NOC लेना पड़ेगा. NOC लेने के बाद 2 NOC होता है जैसे मैंने कहा, और आपको नया बोर्ड में जाना पड़ेगा, और नया बोर्ड में जाने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करके अगेन वेरिफिकेशन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा. सो दिस इज द प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम. एंड मध्य प्रदेश में जाते ही आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, वहां पर यू हैव टू प्रूव योर डोमिसाइलनेस देयर. मींस यू हैव टू प्रूव दैट यू आर स्टेइंग देयर. दिस डिपेंड्स ऑन स्टेट, लाइक स्टेट टू स्टेट. इन अ स्टेट लाइक राजस्थान आपके ओनर रेंट एग्रीमेंट से नहीं चलता है,
कि आप यहाँ पर रुक चुके हैं। इन स्टेट लाइक पंजाब इट कैन हैपन, चंडीगढ़ में हो सकता है, पंजाब बोर्ड में, लेकिन राजस्थान में तो वोटर आईडी में आपका नाम आना चाहिए, या तो आपके दूसरा जो गवर्नमेंट कार्ड्स होते हैं उसमें आना चाहिए। आधार में, आधार भी नहीं चलेगा, इवन आधार इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव योर डोमिसाइलनेस इन राजस्थान। वोटर आईडी में मस्ट है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट रूल्स आपको पहले पता करना है। ऐसे नहीं है कि आपने पहले कैंसिल करके आ गया, अब पता चल गया कि उस स्टेट में तो वोटर आईडी में एड्रेस आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। सो बेसिकली व्हाट यू डू, इनिशियली मेक श्योर व्हाट डॉक्यूमेंट्स दैट पर्टिकुलर स्टेट रिक्वायर्स फॉर आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अगर सब कुछ आपके पास है तभी आप पहले वाला का कैंसिलेशन करके आप आगे जाइए, अदरवाइज विल बी कैंसिलिंग इन वन प्लेस बट अभी ज्वाइन नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट काम में नहीं आए, एनओसी काम में नहीं आए, मतलब आपके मध्य प्रदेश वाले ने मना कर दिया कि आपकी वोटर आईडी में एमपी का एड्रेस है ही नहीं तो हम नहीं करेंगे, फिर आपका एनओसी वापस जमा करने के लिए भी पैसे लगता है, नॉन यूटिलाइजेशन करके दोबारा पैसे लगता है, एंड अगेन यू टू रजिस्टर। तो बहुत पंगा है, तो बहुत सारे पैसे जाने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, यू हैव टू मेक श्योर व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इफ पॉसिबल देन ओनली गो फॉर कैंसिलेशन। दिस इज फ्रॉम स्टेट टू नॉन डोमिसाइल स्टेट। तो कभी कभी ये होता है कि वापस आपको अपना स्टेट में आना पड़ा, 5 साल के बाद यू गॉट जॉब इन योर ओन स्टेट, यू वांट टू कम बैक। अब प्रोसेस इज सिंपल, अगेन अप्लाई फॉर द कैंसिलेशन एंड एनओसी में आप लिख दीजिए कि मुझे गुजरात बोर्ड के लिए चाहिए, तो वो लिख देगा, एक कॉपी आपको देगा, एक कॉपी उनको देगा, और जब वो दोनों कॉपी मिल जाएगा तो देन यू विल बी एबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन, एंड वो एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, ये रिन्यूअल कुछ नहीं है, ये नया रजिस्ट्रेशन है। तो पहले प्रोसेस जो था, आपके स्टेट है, आपके डोमिसाइल है, तो सब कुछ तुरंत हो जाता है, बट योर मनी विल बी वेस्टेड देयर। So this is in relation to the transfer of registration from non-domicile state to domicile state. अभी जो मैं कह रहा था, कुछ चीजें मैंने भी एक्सपीरियंस किया है आउट ऑफ स्टेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कापू बोर्ड से लेके पंजाब बोर्ड से फिर राजस्थान बोर्ड, तो मैंने भी कुछ इश्यूज एक्सपीरियंस किया है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मेरा एक्सपीरियंस विद प्रूफ आपको देखने को मिलेगा, कितना कुछ प्रॉब्लम के साथ वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ट्रांसफर वाला। तो उसको आप देखिए, आपको भी हुआ होगा सेम एक्सपीरियंस, तो कैसे सॉल्व करने वो भी मैंने वहां पर बताया। तो एनओसी क्या है आप समझ गए होंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो प्रैक्टिकल इश्यूज क्या है, ये सारे सिस्टम बनाने के बाद भी इन इंडिया मोस्ट ऑफ दिस बोर्ड्स आर करप्ट, मोस्ट ऑफ देम। यू विल लिसन टू नेगेटिव स्टोरीज फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन हु विजिट्स दैट पर्टिकुलर बोर्ड। मे बी इन मास, जब आप मास में जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा जा रहे हैं, मीन्स एक टाइम होता है जब बीएमएस खत्म हो जाते हैं, सारे कॉलेज वाले एक साथ आ जाते हैं, तब शायद ठीक है, तब रेस्पॉन्स ठीक मिलता है। लेकिन व्हेन यू गो इन ऑड टाइम जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो करप्शन देखने को मिलता है। कभी कभी वो ज्यादा पैसे मांगते हैं, इनडायरेक्टली मांगते हैं जल्दी कराने के चक्कर में, और सर्टेन टाइम्स डिलेड रेस्पॉन्स। आपने अभी लगा दिया, 2 महीने तक आया नहीं रजिस्ट्रेशन। राजस्थान बोर्ड में तो बहुत लोगों का 6-7 महीने तक आए नहीं रजिस्ट्रेशन, तो इतना बुरी हालत है। तो ये प्रैक्टिकल इशू है। तो एनओसी इश्यूज भी है। जब जैसे आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, एनओसी तो देना चाहिए तुरंत। इफ यू आस्क मी, एनओसी शुड बी गिवन इमीडिएटली बिकॉज़ यू हैव पेड द मनी, एवरीथिंग इज रिटर्न। एनओसी देने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एनओसी देने में भी दिक्कत करते हो, बोलते हैं कि हम पोस्ट करेंगे, आप चले जाइए, 1 हफ्ते के अंदर आएगा, 15 दिन के अंदर आएगा। सर्टेन टाइम्स यू डोंट गेट इन 15 days, यू डोंट गेट इन 1 month। वो पूछने के लिए भी कोई नहीं है, फोन तो नहीं उठाता है। तो सारी चीजें प्रैक्टिकल इश्यूज है इंडिया का। तो ये आप अगर पहले ही जानेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो तुरंत 1-2 दिन, इनिशियली 1-2-3 days मेल देम आस्किंग फॉर द अपडेट के लिए आप जरूर मांगिए कि मेरा ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में तो जल्दी मिलना चाहिए था, इतने दिन के अंदर मिलना चाहिए था, अब तक आया नहीं, मेरा स्टेटस क्या है। वेट फॉर द रिस्पॉन्स। यूजुअली दे डोंट रिस्पॉन्ड, दिस इज द यूजुअल रूल। मुझे लगता है जो ईमेल करना ही नहीं आते उनको वहां पर बिठाए जाते हैं, इलिटरेट्स को बिठाए जाते हैं, बेसिकली ऐसे हार्श वर्ड से कहा जाए तो। बेसिकली उनको वो जानते हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं देते, वो देख के छोड़ देते। तो ये रियलिटी है। तो आपको क्या करना है, इनिशियली यू टू गो फॉर रिपीटेड मेल्स रिमाइंडर्स। आफ्टर 1 week, imagine you don't get response and if the time duration is getting delayed, then with all these documents, आपने कब दिया था और रिमाइंडर्स इतने बार भेजे हैं, अब तक आए नहीं, रिप्लाई भी नहीं आया। रिप्लाई आया तो ठीक है, हमें पता है क्या होना हुआ, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। देन अप्लाई फॉर द आरटीआई कहाँ करना है, यू हैव टू पुट आरटीआई, 1 is to the particular board, 1 is to the university,
आप मान लीजिए कि बहुत देर चल रहा है तो यूनिवर्सिटी को भी भेज दीजिए, इन्होंने अब तक वेरिफिकेशन मेरा किया नहीं, कुछ भी करके आप 3-4 RTI अलग अलग बॉडीज को भेज दीजिए, तब जाके कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर आपका काम हो सकता है। यूजुअली RTI आर रिप्लाइड इन 30 days। मेरा भी जो कहानी मैं बता रहा था उसमें भी मैंने फॉलो किया है, तो RTI के बाद ही मेरा कुछ इश्यू सॉल्व हुआ, और एक पावर जो दिया हुआ है सिटीजन को वो आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए RTI, तो इसलिए मैंने कुछ हिंट्स वहां पर RTI की वीडियो में बनाए हैं, तो लिंक आप देख सकते हो। तो बहुत लोगों ने इसको देखा नहीं है, बट सिंस यू are not aware of this RTI, you don't know what is its power. So that is why when you are registering your medical degree, certain times you may require RTI. So there at least you can use, because that is very much needed. I think with this you might have got an overall idea. If there is any other query, any other situation which I have missed, you can put it in the comment box, and even any comments or any changes as per state. There could be some changes state to state. If there is any change, you can put in the comment box so that students and other practitioners will get to know. Until next time, thank you.